آئیے آپ کو براہ راست تقریب لیے چلتے جہاں پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد جب صحت ڈیوالو ہو گیا اور اس ادارہ کو سنبھالنے کی ذمہ داری حکومت سندھ کو ملا تو اس وقت یہ ادارہ چندہ پہ چلتا تھا۔ مریض جو ہے پیشنٹ پیسہ بھر کے علاج کروانا پڑتا تھا، اور 2014 یا 15 سے سی ایم سندھ مجھے یاد دلوائے گا 14 یا 2015 سے ہمیں یہ ذمہ داری ملی، حکومت سندھ کو یہ ذمہ داری ملی، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری ملی کہ ہم اس ہاسپٹل کو سنبھالیں۔ اور جب یہ ادارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق چلنا شروع ہو گیا تو اس کو بجٹ بھی صحت کے حساب کے وہ جو بجٹ اس ادارہ کو ملا، اور اس بجٹ کے اندر رہ کے وہ پیشنٹس کو مفت علاج دینا شروع کر دیا، اور 2015 سے لے کے آج تک صرف ہمارا جو NICVD کراچی کا ہاسپٹل ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا ہاسپٹل بن چکا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا ہاسپٹل موجود نہیں جو اس تعداد میں مریضوں کا علاج کروائیں، اور وہ بھی مفت علاج کروائے، 100% علاج کروائے۔ اور اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ آپ اگر غریب ہو یا وسائل نہ ہو، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے جب کسی نے اپنا علاج کروانا ہے۔ آپ کا جو معاشی صورتحال ہے اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جیے یا خدا نخواستہ فوت ہو۔ تو اسی نظریے کے مطابق اور اسی منشور کے مطابق ہم نے NICVD کراچی کو اس سٹینڈرڈ پہ لے کر آئے جو کہ اب وہ دنیا کا سب سے بڑا مفت علاج کروانے والا دل کا ہاسپٹل بن چکا ہے۔ مگر اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے کہ جب آپ کو کسی صوبہ کا سنبھالنے یا حکمرانی کرنے کی ذمہ داری ملے، یا ملک کو سنبھالنے اور حکمرانی کا ذمہ داری ملے، تو پھر آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کا اپنا مقامی کانسٹیٹیوئنسی تک محدود نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہی NICVD کی بنیاد پہ کراچی کا ہر ڈسٹرکٹ میں چیسٹ پین یونٹ شروع کیا، تاکہ وہ کراچی کے شہری جو فوراً ہمارا مرکزی NICVD نہ پہنچ سکے، وہ جلد از جلد اپنا ہی علاقے میں ڈسٹرکٹ میں اپنا چیسٹ پین یونٹ سے اپنا علاج کروا سکے۔ مگر یہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا، اس لیے سندھ میں کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، ہمارا کیپٹل ہے، مگر حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ بھی اس صوبے کے شہر ہیں، اور اس صوبہ کا ہر شہر میں ہم نے NICVD کا بنیاد رکھا، اور کراچی کے بعد جو سب سے بڑا NICVD کا دل کے علاج کا مفت ہاسپٹل بنا وہ سکھر میں بنا، اور اس کا بھی افتتاح ہم نے کروایا۔ ساتھ ساتھ حیدرآباد میں بھی اور لاڑکانہ میں بھی مفت علاج کے لیے
NICVD कराची के सैटेलाइट सेंटर्स कायम किए जो पूरी तरह दिल के इलाज के लिए मुफ्त इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल्स है। और साथ साथ हमने मुख्तलिफ अजला में, टंडो मोहम्मद खान में, सहवन में, नवाबशाह में, मिठी में, खैरपुर में, वहां भी सैटेलाइट सिस्टम्स खोले हैं। वहां भी वहां के शहरियों को, वहां के रहने वालों को मुफ्त इलाज मिलता है। दिल के इलाज 100% मुफ्त होता है। हुकूमत सिंध की तरफ से कराची में 17 आपने चेस्ट पेन यूनिट्स, तो हर डिस्ट्रिक्ट से तो ये ज्यादा है, ये सारे आपको क्या सुनाना, बस 17 है कराची में, मलीर में भी हैं, किमारी में भी हैं, जगह जगह आपके कराची में चेस्ट पेन यूनिट्स इतने ज्यादा हैं कि मैं नहीं गिन सकता हूं कि कितने हैं। ओके, तो बड़े शहरों के अलावा चेस्ट पेन यूनिट्स NICVD का घोटकी में, टंडो बागों में, जेकोबाद में, उमरकोट में, टंडो लयार में, मीरपुर खास में और शिकागो में मौजूद है। तो हमने ना सिर्फ कराची में सबसे दुनिया का बड़ा दिल के इलाज का हॉस्पिटल है वो भी मुफ्त, मगर सिंध भर में एक ऐसा नेटवर्क कायम किया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के दिल के इलाज के हॉस्पिटल मुफ्त करवाए जा रहे हैं। और पूरा सिंध का ये जो निजाम है, ये जो सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल का इलाज के लिए, ये दुनिया के सबसे बड़ा नेटवर्क है। और सिंध का NICVD भारत का किसी हॉस्पिटल से मुकाबला करने के लिए तैयार है, यूरोप का किसी हॉस्पिटल से मुकाबला करने के लिए तैयार है, और अमेरिका का किसी हॉस्पिटल से मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं कि ये वो उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध के किरदार कशी में पिछले 10-15 साल मसरूफ थे, जो एक ही रट पे लगे रहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, सिंध हुकूमत ने किया क्या है। NICVD उनका मुंह तोड़ जवाब है। मैं इस मुल्क के 70 साल के जो सियासतदान हैं, जो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, जो कहते हैं कि 30 साल सियासी जदोजहद में मसरूफ थे, जो कहते हैं कि वो पता नहीं उनके 3-4 साल दौर में दूध और शहद के नहरें पख्तूनख्वा से लेके इंडस बेसिन तक बह रहे थे, मैं उनसे पूछता हूं कि मैं तो तकरीबन 30 साल का उम्र का हूं और इतना कम टाइम में मैंने तो दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त इलाज का नेटवर्क अपना सूबा में बना के आपके दिखाने के लिए काबिल है। मैं आपसे पूछता हूं कि पूरा पख्तूनख्वा उठा के दिखा दे। पंजाब का हर जिला में आप जाके तलाश करें, आपको एक ही सखर का NICVD की तरह इदारा नहीं मिलेगा। जहां हम हुकूमत सिंध के पैसे, सिंध के अवाम के पैसे, सिंध का सेहत के निजाम में दिल का मुफ्त इलाज करवाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसका फायदा सिंध का अवाम को मिल रहा है, खास तौर पे इन दौरों में, इस वक्त में जब एक मुआशी बहरान है, जब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत अरूज पे हैं, तो हर सिंध में रहने वाले को और पूरे मुल्क में बसने वाले के लिए एक ऐसा कौमी इदारा का कॉफी, और असल मानों में कौमी इदारा का तोहफा है कि आपको ये मुफ्त इलाज का सहूलत मिल सकता है। और आज तक 800,000 से ज्यादा लोग जो सिंध से बाहर से ताल्लुक रखते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, पख्तूनख्वा, पंजाब, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो आके सिंध का NICVD में अपना मुफ्त इलाज करवाते हैं।
पंजाब और पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड के नाम पे एक धोखा चल रहा है और उस धोखा से वो पंजाब का पैसा, पख्तूनख्वा का पैसा, उनका अवाम का पैसा अपना सेहत के जो इंस्टीट्यूशंस है, अपने हुकूमत के हॉस्पिटल्स में, अपना डॉक्टर्स के तनख्वाह में, अपना नर्सेस के तनख्वाह में, उन इदारे में तो खर्च नहीं हो रहे हैं। वो पंजाब का बजट पे डाका मार के, वो पख्तूनख्वा के बजट पे डाका मार के प्राइवेट इंश्योरेंसेस को पैसा दे रहे हैं, प्राइवेट इदारे को पैसा दे रहे हैं और इस तरीके से उनका सेहत का निजाम तबाह होता जा रहा है। और जो सेहत का इलाज पंजाब और पख्तूनख्वा में होता है वो सिर्फ पैसा के लिए होता है, यहाँ सिंध में आपका जान बचाने के लिए होता है। और हम देखते नहीं हैं कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आप अमीर हो या गरीब हो, आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं या किसी सूबे से ताल्लुक रखते हैं, हम इंसानियत के बुनियाद पे आपका इलाज करवाते हैं। मैं समझता हूं कि ये इदारा और ये नेटवर्क पूरी कौम के लिए और हर सूबा के लिए एक ऐसा मॉडल बनना चाहिए। और मैं वफाकी वजीर ऑनरेबल कादर पटेल साहब से दरख्वास्त करता हूं कि जबकि वो आप सेहत का वजीर है तो वो जरूर वफाक से भी आप बात करें और दूसरे सूबे से बात करें कि अगर वो चाहे तो हम अपना नदीम कमर रेंट करने के लिए तैयार है, लोन करने के लिए तैयार है, ताकि वफाक में भी या दूसरे सूबों में भी हम इस किस्म का इदारा बना सकते हैं। बजट उनको देना पड़ेगा, आजकल उनका आदत है कि आपका बजट काटना, लेकिन मेरा ख्याल में अगर आप वजीर आजम से खुसूसी जो है रिक्वेस्ट करते हैं तो हम 6 महीने के अंदर इस्लामाबाद में सैटेलाइट खोल सकते हैं, मगर ऑब्वियसली में बजट की जरूरत होगा। ये इसी फलसफा के तहत हम समझते हैं कि पाकिस्तान को चलना चाहिए, हमारा इदारे को चलने चाहिए, हमारा हुकूमत को चलाने चाहिए। और सबसे जो बड़ा सबूत है कि जब वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन से क्या मिला है, 18वीं तरमीम से क्या मिला है, 1973 की आईन आपको क्या दिलवा सकती है, तो आपने एक NICVD का तस्वीर निकाल के उनको दिखाना है। साथियों, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनके सियासतदान, उनके हुक्मरान उनकी खिदमत करें, उनका मसाइल का हल निकालें, NICVD जैसे इदारे कायम करें और आपस का लड़ाइया, आपस के सियासत, सियासी बयानबाजी, सियासी लड़ाई जो है वो पार्लियामान में हो या इंतखाबात में हो। और उसके अलावा हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी और आपका मसाइल का हल करें। और मेरी अपील है बाकी कुछ ऐसे जमातों से कि वो इंतहा पसंदी का सियासत छोड़ दे, वो गैर जमहूरी सियासत छोड़ दे, वो दोस्त धमकी और झूठ की सियासत छोड़ दे, वो नफरत और तकसीम की सियासत छोड़ दे और पाकिस्तान की एक जमहूरी रवैया है, एक जमहूरी तहरीक है और आप उसकी हिस्सा बन के पाकिस्तान की तरक्की में आपका एक किरदार हो सकता है। वरना पाकिस्तान की तकसीम में, पाकिस्तान की तबाही में जो आपका किरदार रहा है वो तारीख का हिस्सा है। और जिस तरीके से आप आजकल भी अपना सियासत और अपना नफरत अंगेज सियासत चला रहे हो, उससे आपको अपना तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है वो भी हम सबके सामने है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान एक मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, एक सियासी और आईनी बहरान से गुजर रहे हैं, एक सिक्योरिटी का, एक दहशतगर्दी का एक क्राइसिस मौजूद है, कुदरती आफत और सैलाब के असरात आज तक मौजूद हैं और इन सारे मसाइल को हल करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक बार फिर मैं हुकूमत सिंध, नदीम कामर साहब,
वजीर सेहत सिंध और आप सबको मुबारक देता हूं कि ये जो कौमी इदारा जो सेहत में इनकलाब मुफ्त इलाज का जो आपने NICVD का कहानी शुरू किया है, ये तसलसल रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो इलाके सिंध भर में NICVD से महरूम हैं, वहां भी हम दिल का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल खड़ा करके दिखाएंगे। जहां जहां अभी तक सिर्फ चेस्ट पेन यूनिट मौजूद है और पूरा सैटेलाइट सेंटर मौजूद नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला हम वहां उन चेस्ट पेन यूनिट्स को एनहांस करेंगे और वहां भी सैटेलाइट सेंटर्स लेकर आएंगे। जाने से पहले मेरा एक शिकायत है, मेरा एक खास तौर पे सूबे सिंध के हवाले से। एक तो आपको पता है कि कुदरती आफत और तारीखी सैलाब के बाद हमारे कुछ शिकायत हैं, उनको भी एड्रेस तो होने चाहिए। सेंसस पे हमने अपना रेड लाइन ड्रॉ कर लिया है और आपको आपके सामने सारे जो हमारे ख्यालात हैं वो तो रखे ही रखें। लेकिन साथ साथ इस सूबा में तकरीबन 1 साल पहले बल्दियाती इलेक्शंस होने थे और जो फर्स्ट फेज के बल्दियाती इलेक्शंस थे, जो नॉर्दर्न सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस थे, वो तकरीबन टाइमली 1 साल पहले हो चुके। उसके बाद इसलिए कि दीवार पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट से दूसरा फेज में जीत रही है, तो कई न कई बहाने पे हमारा लोकल बॉडी इलेक्शंस डिले होते रहे। जब हम कहते थे कि सैलाब है उस वक्त ना करे, तो वो कहते थे नहीं करवा दे, और जब हम कहते थे कि अब हम तैयार है आप इलेक्शंस करवा दो, तो हमें बताया जाता था कि नहीं आप ना करवा दे। एनीवे, आखिरकार आपको सेकंड फेज में रहने वाले को, हैदराबाद के अवाम को, कराची डिवीजन के अवाम को अपना मौका मिला और एक तारीखी बल्दियाती इलेक्शंस हुए जिसमें तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ हैदराबाद डिवीजन को स्वीप किया है और वहां के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में वोट किया, मगर कराची डिवीजन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली। और ये अवाम का एतमाद उस जमात में है जो आज से नहीं अपनी बुनियाद से इसी शहरों में अपने सियासत करती आई है। कभी किसी थंडर स्क्वाड का मुकाबला करके सियासत करते थे, तो फिर कभी कोई बाहर के बैठा हुआ दहशतगर्द का मुकाबला करते थे। और हम जानते थे कि हमारा मुकाबला तो सिर्फ जमहूरी मुकाबला नहीं था, हम हर वक्त जमहूरी रहे, लेकिन हमने दहशत का मुकाबला किया। हमने पुरअमन तरीके से वोट का इख्तियार थे, पुरअमन एहतजाज से कुर्बानियां दे के, शहादतें हासिल करके, अपने कारकुनों के खून पसीने में और नस्लों के मेहनत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची का इलेक्शन जीता है और हमारा मैंडेट है, आपका मैंडेट है। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि इलेक्शंस तो हो चुके हैं, हर इलाका अपना नुमाइंदे से महरूम है। सैलाब के दौरान, मॉनसून के दौरान हमारा नॉर्दर्न सिंध के जो इलाके हैं, अगर उनमें उनके बल्दियाती नुमाइंदे को वोट वो चेयरमैन का और मेयर का इलेक्शन करवाने देते हैं, तो हमारे पास लोग मौजूद होते हैं, तो उस इम्तिहान के वक्त अपने लोगों को मदद कर सकते थे। इलेक्शन तो जीत चुके थे, ओहदा नहीं संभाल रहे थे, लोग उनके पास आ रहे थे, काम नहीं करवा सकते थे।
दूसरा सेकंड फेज का इलेक्शंस हो चुका है। आज तक पूरा सिंध अपना बल्दियाती नुमाइंदे से महरूम रखा जा रहा है। तारीखी तौर पे पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते रहते थे कि पीपल्स पार्टी तो डेवोल्यूशन के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी तो हमेशा लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते हैं। तो अब जवाब दो, हमने इलेक्शंस करवाए हैं तो कौन रोक रहे हैं, कौन रोक रहा है? किसको ये खौफ है कि क्या हो जाएगा, क्या क़यामत टूट पड़ेगा अगर चियाला मेयर होगा और कराची का या हैदराबाद का? अवाम ने वो सारे साजिशों को जवाब अपना वोट के थ्रू, अपना हक इस्तेमाल के आपने अपने जवाब दिया है। पूरे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जनरल इलेक्शंस मुकम्मल हो मगर एक सीएम को या वजीर आजम को कहा जाए कि आप इंतजार कीजिए, पहले उन बाई इलेक्शंस को हम जरा करवा दें, उन बाई इलेक्शंस करने के बाद फिर हम आपको अपना वोट लेने का मौका देंगे। और स्केड्यूल मजाक का क्या स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन ने निकाल दिया है कि रमजान के 18 अप्रैल में हम बाई इलेक्शंस करवाएंगे और 30 अप्रैल को आपको मौका देंगे कि आप अपना नुमाइंदा चुनें। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम समझते हैं ये जानबूझ के अपने इलाके को अपने नुमाइंदों से महरूम रखा जा रहा है, उनसे जो ये हजम नहीं हो रहा था माजी में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से जीते तो उनको कभी किसी थंडर स्क्वाड को खड़ा करना था, कभी किसी और को खड़ा करना था। अब उनसे ये हजम नहीं हो रहा है कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, एक पुरअमन जमात है। हमने कभी इंतहा पसंदी का सियासत नहीं की है, मगर हम अपने वोटर्स के, अपने कारकुनों को जवाब दें हैं और मेरे पास इस गैर जमहूरी कदम का कोई जवाब नहीं है। मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूं, मुर्तजा वहाब साहब जो एडवाइजर सिंध है लॉ मिनिस्ट्री का, आपसे रिक्वेस्ट और सीएम सिंध से रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरन सिंध हाई कोर्ट चले जाएं और इस इलेक्शन स्केड्यूल जो ऐलान किया गया है इसको चैलेंज किया जाए। हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से जब भी हमारा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट या किसी कोर्ट का किसी इदारा पर हमला हुआ है तो हमने हमेशा उनके साथ खड़े किए हैं। जब मेरिट के खिलाफ फैसले लिए जा रहे थे तो हमने सबसे पहले आवाज उठाए थे। अब हमारा हक पे डाका मारा जा रहा है। वो कुव्वतें ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होगा। और मैं समझता हूं कि अगर हमने जो इस शहर का माजी का खून खराबा का सियासत था, नफरत का सियासत था, लिसानी बुनियादों पे तकसीम का सियासत था, अगर उसको हमने छोड़ना है और एक अमन के सियासत की तरफ जाना है, अगर हमने यूनिटी के सियासत की तरफ आगे बढ़ना है तो हमारा इस कंप्लेंट को फिल फॉर एड्रेस होना पड़ेगा और जल्द अज जल्द, मतलब फौरन मेयर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, वरना इसका जो असरात होंगे, इसके जो इफेक्ट्स होंगे आने वाले वक्त में इस शहर की अमन और इस शहर का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सवाला निशान बनेगा। मैं चाह रहा हूं कि बल्दियाती सतह पे भी इसलिए कि हमारा खिदमत में, हमारा गवर्नेंस में एक की जो रुकावट रहा है, तारीखी रुकावट रहा है, गैर सियासी और इनऑर्गेनिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती निज़ाम से आउट रखा जाता था और हम इस शहर में खास तौर जो खिदमत कर सकते थे, जिस तरीके से खिदमत कर सकते थे, उससे
हमें वो मौका नहीं मिला। इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है मेयर हमारा होगा, जल्द जो है बल्दियाती निज़ाम आपका होगा, और एक कोऑर्डिनेशन के साथ तारीखी एक सियासी मौका होने वाला है जहां वफाक भी, सूबाई हुकूमत भी और बल्दियाती निज़ाम भी एक पेज पे होंगे, और इंशाअल्लाह ताला उस तेजी के साथ कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम, पूरा सूबा के अवाम का मसाइल जो है उनके हल निकाले जाएंगे। जीए भुट्टो। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे।